Hello everyone. In this lecture, we will discuss the structure of page tables that are used to implement virtual memory using paging schemes by different operating systems. Page table is basically data structures that are used by virtual memory paging system to store the mapping information to translate logical addresses to physical addresses. The main memory is divided into equal size frames that are there in main memory, and the logical address space is divided into a similar size of blocks that are referred as pages. Now the page table is used by the operating system to store the information where when a page is brought into main memory, the frame number allocated to that particular process. So it stores, the page table stores the address or the frame number of a particular page location in the main memory. If it is not there, if the page is not in the main memory, then that respective entry is nil. So page table is used to map the logical address to the physical address. The entire page table is kept in main memory for access to find out the addresses, and the page table entry is indexed by the page number, and each entry stores the frame number of main memory where that page table is stored. Simple. Now, as we know, to implement page table, there are different techniques that are used: hierarchical, inverted, and hash. We will take each one in detail. The hierarchical page table is basically used to easily manage a very large size page table. Most modern computer systems supports a very large logical address space, that is in the range of 2 raised power 32 to 2 raised power 64. So if your address space is 32 bit and your page size is 4 KB, then total number of pages that will be there in the system will be 2 raised power 20. And again, each entry takes 4 bytes, then total 4 MB of physical address space will be used just to store a page table of a single process, and there are similar size multiple processes in the table. So you can imagine how much memory space is occupied by these large size page tables. So to manage these long page tables, this hierarchical scheme is used where we divide the pages into different levels. For example, you have 100 entries. Now if you have 100 entries, तो आपको 100 एंट्रीज़ की एक पेज टेबल रखनी पड़ेगी 100 पेजेस को सेव करने को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो आपको जब भी सर्च करना है आउट ऑफ 100 करना पड़ेगा. तो टू मेक इट ईजियर, व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन डिवाइड इट इनटू अ 2 लेवल पेज टेबल, जिसमें कि पहली पेज टेबल में 10 एंट्री होंगी 0 से लेके 9 तक. जो 0th एंट्री है वो सेकंड लेवल पे 1 टू लेके 0 से लेके 9 तक के पेज टेबल को पेजेस को रेफ़र करेगी, उनके फ्रेम्स रहेंगे वहाँ पे. सेकंड एंट्री जो होगी इट विल मैप टू 10 से लेके 19 तक के पेजेस को. थर्ड एंट्री 20 से लेके 29 तक के, एंड सो ऑन. तो आप जो है एक 100 एंट्री की एक सिंगल पेज टेबल के बजाय आप जो हैं 10 टेबल रख सकते हो, 9 सेकेंड लेवल पे और एक फर्स्ट लेवल पे, जिस 10 एंट्रीज़ की छोटी छोटी टेबल्स. तो आप उससे आपको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है. तो देयर आर 2 स्कीम्स कॉमनली यूज, 2 लेवल पेज टेबल एंड 3 लेवल पेज टेबल. 2 लेवल पेज टेबल के अंदर अगेन जो सेम एग्जांपल मैंने लिया था कि जो आउटर पेज टेबल है वो आपका जो टोटल एड्रेस स्पेस होता है उसको आप 2 लेवल में डिवाइड कर देते हो. पहली से आप सेकेंड लेवल पे जाते हो और सेकेंड लेवल पे आपको एक्चुअली फ्रेम नंबर मिलता है, वहाँ से आप मेन मेमोरी को एक्सेस करते हो. Now, for example, if your address is 32 bits और 12 बिट का ऑफसेट है, तो 20 बिट्स जो पेज नंबर डिफाइन करने के लिए यूज़ हो रही है, तो आपके पास 2 रेज़ पावर 20 पेजेस हो गए. इसको सॉल्व करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिवाइड द एंटायर पेज एड्रेस टू 2 लेवल्स. 10 बिट का लेवल 1, 10 बिट का लेवल 2. तो पहली 10 bits will be used to index to the level 1 page table, and the next 10 bits will be used to index to the next level page table, like this. And this is a particular diagram. यहाँ पे P1 is mapping to this page table. यहाँ से आपको इसकी एंट्री मिलेगी. यहाँ पे रिस्पेक्टिव एंट्री जो है
it will be used to refer to the level 2 page table. यहाँ पे आपको respective frame number मिलेगा and you can directly calculate the offset and refer to the physical address. तो इस तरीके से hierarchical scheme use करके you can reduce the size of the page tables, और आपको access करने में भी, क्योंकि जितनी less space होगी आपको access करने में उस space को कम time लगेगा. Now this is just a numerical examples. In next few slides we will discuss few examples to depict a system uses a 2-level page table जिसमें कि 2 की पावर 12 बाइट्स पेजेस हैं और 32 बिट वर्चुअल एड्रेस स्पेस है. बिकॉज 2 की पावर 12 बाइट्स का पेज है, इसका मतलब 12 बिट्स आपका ऑफसेट हो गया. because 12 bits will be used to refer to one particular word or byte in the page. तो 12 बिट का ऑफसेट हो गया. रिमेनिंग बची 20 बिट. अपना जो 20 बिट बची हैं इसमें उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि यू हैव फर्स्ट 8 बिट्स जो है वो फर्स्ट लेवल पेज टेबल की है. तो 20 - 8 बचा 12. तो 12 बिट आपका लेवल 2 पेज टेबल हो गया है, लेवल 1 8 बिट का हो गया एंड यू हैव एन ऑफसेट. तो जो पूरा 20 बिट का पेज एड्रेस था उसको हमने दो लेवल्स 8 और 12 में डिवाइड कर दिया है. नाउ व्हाट हैपेंस कि एंट्रीज इन लेवल 1 पेज टेबल विल बी 2 raised power 8 दैट इज 256 एंड एंट्रीज इन लेवल 2 पेज टेबल विल बी 2 raised power 12 बिकॉज 12 बिट का लेवल 2 है तो 2048 एंट्रीज हो गई. और टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए 2 raised power 20 बिकॉज हमारी 20 बिट का पेज नंबर, टोटल पेज नंबर 20 बिट्स का है तो पेजेस हमारे 2 raised power 20 ही होंगे. तो इसी तरीके से तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि यू हैव अ 2 लेवल पेजिंग स्कीम विद फर्स्ट लेवल 8 एंड सेकंड लेवल 10 बिट्स का है. तो 8 से आप 2 raised power 8 एंट्रीज़ को एक्सेस कर सकते हो. लेवल 2 में आप 2 की पावर 10 एंट्रीज़ को कर सकते हो. 32 में से आप 18 माइनस करोगे 14 बचेंगे तो 14 का आपका पेज साइज़ हो जाएगा. तो 2 raised power 14 का आपका पेज साइज़ हो जाएगा. एंड टोटल पेजेस कितने हो गए, ये पूरा पेज जो एड्रेस है अदर देन द ऑफसेट इज़ योर पेज एड्रेस, तो वो टोटल 18 बिट्स का है तो 2 raised power 18 पेजेस हो गए. सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है. अ डिफरेंट टाइप, अ कंप्यूटर हैज़ 32 बिट वर्चुअल एड्रेस एंड 1024 बाइट पेजेस. एक पेज टेबल एंट्री 4 बाइट्स में एक पेज टेबल एंट्री सेव करती है. तो 4 बाइट्स का पेज टेबल एंट्री है और मल्टी लेवल पेज टेबल is used in such a way that each table must be contained within a page. मतलब a single page cannot span two, a single page table cannot span 2 pages. एक ही पेज में एक पेज टेबल आनी चाहिए. तो आपका पेज टेबल का साइज़ फिक्स हो गया कि वो एक पेज से ज़्यादा जगह नहीं ले सकती. अब एक पेज में आप कितनी एंट्रीज़ रख सकते हो, आपका एक पेज का साइज़ कितना है 1024 का. एक एंट्री जो है वो 4 बाइट ले रही है तो टोटल कितना हो गया 2 raised power 10 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 2 raised power 8. तो 256 एंट्रीज़ एक पेज पे आ सकती हैं. अब जब इसने 1024 बाइट का पेज बोला है, इसका मतलब 32 में से जब हम 10 बिट निकाल देंगे वी विल हैव 22 बिट्स. तो ये जो 22 बिट्स हैं हमारी, इसको हमें पेज में डिवाइड करना है, नंबर ऑफ़ लेवल्स में डिवाइड करना है. किस तरीके से कि हम एक पेज के अंदर 8 से ज़्यादा मतलब 8 से की हिसाब से 256 एंट्री से ज़्यादा नहीं रख सकते. तो 8 बिट का हम अगर इसको डिफ़ाइन करते हैं, 8 हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो 22 में से 16 चले गए तो 6 बिट्स बचे. तो 6 बिट्स का हमारा लेवल 1 पेज टेबल हो गया. तो इन 22 बिट्स को वी हैव टू एडजस्ट इन सच अ वे कि 8 के कॉम्बिनेशन में आप कितना रख सकते हो एंड द रिमेनिंग विल बी फॉर द फर्स्ट वन. तो एक 8 रखा, एक लेवल थर्ड लेवल हो गई, एक 8 रखा लेवल 2 हो गई, द रिमेनिंग बचे 6 बिट्स तो वो लेवल 1 हो गई. एंड सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ सिमिलर. यहाँ पे 64 बिट का वर्चुअल एड्रेस है, 2048 बाइट का पेज है तो उसके हिसाब से आपकी 512 एंट्रीज़ हो गई. 2 raised power 11 डिवाइडेड बाय 4. जब 512 एंट्रीज़ आई है तो हम एक और एक में मतलब 9 बिट हो गई हमारी एक की, तो हम 9 के कितने में कर सकते हैं, टोटल 53 बचे हैं. 64 में से 11 माइनस करें तो हमारे पास 53 बचे. तो 53 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो हमारे 45 के हो गए और एक हमारा 8 बिट का रह गया. तो लेवल 1 विल बी ऑफ 8 बिट एंड 2 3 4 5 6 लेवल्स हमें चाहिए पड़ेंगी इसमें, क्योंकि हमारा लिमिटेड है. एक टेबल हमारी एक पेज से ज़्यादा जगह नहीं ले सकती, तो हमको एक पेज में ही सेट करना है. एक पेज में कितना सेट हो सकता है तो इसके हिसाब से निकल आएगा. तो सिमिलर इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन्वर्टेड पेज टेबल.
इन्वर्टेड पेज टेबल बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि अभी तक हमने देखा कि कन्वेंशनल पेज टेबल के अंदर वी हैव वन एंट्री पर पेज, तो जब वन एंट्री पर पेज होती है तो देयर आर द नंबर ऑफ पेजेस विल गिव यू नंबर ऑफ एंट्रीज इन अ पेज टेबल, मेकिंग द पेज टेबल sizes very large because the process sizes are also very large these days. तो to overcome this problem we use inverted page table schemes. यहाँ पे उल्टा होता है, instead of having one entry per पेज वी हैव वन एंट्री पर फ्रेम, क्योंकि फिजिकल मेमोरी फिक्स है, वो पूरे सारे प्रोसेसेस उसी मेमोरी को यूज़ करेंगे, तो वी कैन नॉट हैव वी नीड नॉट हैव मोर देन वन पेज टेबल, तो पूरे सिस्टम के लिए एक ही पेज टेबल यूज़ होती है एंड वी हैव वन एंट्री पर फ्रेम। एंड इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग कि इस पेज ये पेज कौन से फ्रेम में सेव्ड है, हम क्या सेव करते हैं इस फ्रेम में किस प्रोसेस का कौन सा पेज सेव्ड है, क्योंकि हमें प्रोसेस आईडी सेव करना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि हमको हर पेज का पेज नंबर जो है स्टार्टिंग पेज नंबर 0 होता है, अप टू द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस उतने पेजेस लगेंगे, 0 1 2 3 0 1 2 3 हर प्रोसेस का पेज नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं। तो 5 प्रोसेस हैं तो देयर विल बी 5 पेज नंबर 0, सो हमें प्रोसेस आईडी भी कि P1 का पेज नंबर 0 लेना है या P2 का पेज नंबर 0 लेना है, तो हमें वो सेव करना पड़ता है। जो मैपिंग स्कीम होती है वो इस तरीके से होती है कि CPU जब एड्रेस इशू करता है वो प्रोसेस आईडी और प्रोसेस पेज नंबर होता है, तो PID और P जो है ये जो यहाँ पे पेज टेबल होती है वो इट इज़ इंडेक्स बाय द फ्रेम नंबर एंड इट मैचेस, जो एंट्री मिल जाती है वो किस एंट्री के लिए मिली, फर्स्ट एंट्री मिली, सेकंड मिली, थर्ड मिली, जो एंट्री मिली वो उस एंट्री नंबर को हम लेते हैं, वो फ्रेम नंबर होता है एंड देन वी कैलकुलेट द फिजिकल एड्रेस। तो इन्वर्टेड पेज टेबल में वी हैव वन एंट्री पर फ्रेम एंड इन लॉजिकल एड्रेस वी हैव वन एंट्री पर पेज। इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन के अलावा न्यूमेरिकल जो बनते हैं उसमें इन्वर्टेड पेज टेबल अगर होगी तो यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्रेम्स एंड कन्वेंशनल पेज टेबल होगी तो यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पेजेस। सिंपल 2 क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पेजेस एंड नंबर ऑफ फ्रेम्स रिस्पेक्टिवली। The last topic is hash page table. Hash page table के अंदर it is basically used for address spaces larger than 32 bit. इसमें क्या होता है, we use a hash function and every time a CPU issues an address, that particular hash function से हम hash value निकालते हैं और कई एक से ज़्यादा पेजेस की सेम hash value हो सकती है। तो अगर hash value h है तो जो पेजेस की hash value h निकल के आती है वो सारे पेजेस यहाँ पे लिंक लिस्ट में कनेक्टेड होते हैं। पेज नंबर, फ्रेम नंबर, पेज नंबर, फ्रेम नंबर, पेज नंबर, फ्रेम नंबर, इस तरीके से वो लिंक लिस्ट में कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी लॉजिकल एड्रेस इशू होता है हैश फंक्शन कैलकुलेट होता है, जो हैश फंक्शन निकल के आता है उसकी जो लिस्ट होती है लिंक लिस्ट कनेक्टेड, उसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा पेज है, क्योंकि मल्टीपल पेजेस कैन हैव सेम हैश फंक्शन। तो इस तरीके से हम सर्चिंग को फास्ट कर लेते हैं, हमें पूरी पेज टेबल नहीं सर्च करनी पड़ती, हैश फंक्शन के हिसाब से हम डायरेक्टली अ स्मॉलर सेट ऑफ पेजेस को एक्सेस करते हैं। So these are the 3 methods that are used to represent page tables. Thank you very much.